और इस मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को अगर आपको समझना है तो आपको एडवांस क्रिलियन ओरा फोटोग्राफी को साइंटिफिक समझना पड़ेगा। जैसे आमतौर पे हम लोग फोटोग्राफी करते हैं तो उसमें सिर्फ हमारा फोटो दिखता है, लेकिन आप क्रिलियन ओरा फोटोग्राफी से अगर फोटोग्राफी करोगे तो आपके सराउंडिंग में जितना भी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है वो सब कुछ आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और आज मैग्नेटिक पावर हमें कम मात्रा में मिल रही है क्योंकि आज हमारे 3 फीट में लोहा है, लेकिन आज एडवांस क्लियन ओरा फोटोग्राफी से अगर उसको आप देखना चाहो तो आप आराम से देख सकते हैं। आप कहीं पे भी फोटोग्राफी करोगे तो सराउंडिंग में सब आपको मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी दिखेगी और उससे ये साबित हो जाता है कि हमारे आजू बाजू में सब जगह पे मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी उपलब्ध है। और उसके एकदम एक्सपर्ट क्रिलियन ओरा फोटोग्राफी एक्सपर्ट डॉक्टर आपको इसके बारे में और इन डिटेल समझाएंगे कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। My name is Chetan Sabnis. I'm a biowell specialist using this biowell camera, what is called as Krillin photography for last 4 years. So I'm here at the center of eBiotorium to see, to use the product and see how the energy levels change in the human body. So we'll be making a live demo of using this product before and after. When you come to the energy levels of a body, अपना जो body का energy levels है हम उसको energy centers बोल सकते हैं। body में 7 energy centers रहते हैं, उसको हम बैलेंस करेंगे। ओके, उसको चक्रास बोलते हैं। इस बायोवेल कैमरा और क्रिलिन फोटोग्राफी में हम अपना बॉडी का एक एनर्जी देखेंगे और एनर्जी कैसा चेंज होता है बिफोर यूजिंग दिस मैट्रेस एंड आफ्टर यूजिंग द मैट्रेस, उसको कैप्चर करके आपको लाइव डेमो दिखाएंगे। ओके से ओके। If I look at your energy aura, this is your aura. Your balance of aura is almost 96%. Okay. This is where the problem is. Stress Increased. increased 3.2%. Uh-huh. Your stress level. And I want to apply it here. Okay. Perfect. See the energy change, how the chakras are changed. Now this magnet has changed your whole system. Imbalance, energy imbalance, which was 4.3 on your right side of the body. I used only one magnet for you now. When you use the magnetic 100 magnet, magnets. you see the power, exposure, really it makes a lot of sense. Sumanji, now what we will do is, we will measure your aura, okay, before sleeping on this magnetic mattress and after mattress, okay? Sure, doctor. So here what I'm going to run is, you're going to use this tool. Okay. Okay, you're going to use all your 10 fingers one by one, okay? And we will try to measure the energies on this screen. Okay, sir. ये अभी और है, बाद में आप मैट्रेस के ऊपर सो के उसका एनर्जी का जो इम्पैक्ट रहेगा आपका बॉडी, which is positive energy which is coming from the magnet, that also will show impact on your energy level through chakras or through your organs. So that is what you can see. So we'll use this biomagnetic mattress and see the impact on the aura. For your information, there are biomagnetic magnets here in this whole bed. Each has a power of 3000 to 5000 Gauss. That is the power of each magnet. So when you sleep on this magnet, imagine any magnet's north and south pole, that's the energy which is coming up. It tries to give more oxygen. So you can see what kind of change your aura will have because of this magnetic force. Okay, doctor, let's get Okay, you started. take a rest for a certain time and let us see how your aura goes for a change. डॉक्टर, आपके एक्सपीरियंस में आपने किसी पेशेंट को देखा है जिसने ये ई बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ करके खुद को बहुत अच्छे से क्योर कर लिया है बहुत कम टाइम में? Yes, चमत्कार देखा है मैं। 15-year girl from Nasik who was bedridden for 5 years. She used this product 1 to 1.5 months. Now she is able to walk, climb stairs. क्या बात कर रहे हैं, सच में? Even I can't believe it. But this is a wonderful magic mattress which can do wonders. Done. So you have slept for enough time, I think. You have got enough of energy now. Let's check your aura again and see the difference. Beautiful. Now this is the kind of energy balance. You can see this is color ones are before. Once you're done the sleeping on the mattress, see the chakra shifting. See the alignment. Yeah.
You see the difference here, stress level? Yeah. It was 3.09, that's a marking. But definitely by sleeping for a few minutes, whatever you've done, the stress has come down. If you look at energy level, 41 and it has gone up. Your Yes. energy has come up. See the energy, there is the expansion of your energy before and after. You can really understand, you do meditation to try to align these chakras, but here while sleeping on this Just for mattress, 5 minutes. Yes. you can imagine if you do it continuously, a lot of energy imbalance is getting rectified on. Yes, yes. Okay, so that's the chakras which has got an alignment. Okay, It's a wonderful experience, doctor. Thank you so much. And definitely मैं ये e-biotorium biomagnetic mattress regularly use करने वाली हूँ. don't forget to thank the inventor Sagar Joshi, Sagar who has Joshi, done sir. wonder by bringing such kind of innovations in our life. Yes, this innovation is actually magical because आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, इतने पैसे खर्च करते हो, इतने टेस्ट कराते हो एंड अगर आप जस्ट इसके ऊपर सो के, सबसे आसान चीज़ है, उससे ज़्यादा तो कुछ आसान हो नहीं सकता, आप अपनी हेल्थ ठीक कर सकते हो, तो आई थिंक इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती. And it's a lifeline product, you can really enjoy, everybody can enjoy it. Yes, yes. Thank you, doctor. Thank you once again. Have a nice day, thank you. इतना एडवांस क्रिलियन ओरा फोटोग्राफी के बारे में इतनी खूबसूरत जानकारी डॉक्टर साहब ने हमें दी, उनके लिए मैं डॉक्टर साहब का सहृदय आभार व्यक्त करता हूं. दोस्तों, जैसा बहता पानी पीने लायक होता है, वैसा ब्लड भी हमारा हमेशा बहता हुआ होना चाहिए. ब्लड सर्कुलेशन अगर हमारा डिस्टर्ब हो जाता है तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे वायरसेस क्रिएट होते और मल्टीपल बीमारी हमारे शरीर में पैदा होती. ब्लड सर्कुलेशन के मैकेनिज्म को समझने से पहले हमें कुछ बातों को समझना है. मैं आपको इंटरकनेक्शन करके बताऊंगा. व्हाट इज द मैग्नेटिज्म, व्हाट इज द ब्लड सर्कुलेशन, व्हाट इज द ऑक्सीजन. इसको हमको समझना है. जैसे आपको मैंने बताया कि हमारा शरीर सराउंडिंग की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को खींचता है, जिसके कारण हमारा हार्ट पंपिंग करता है. जैसे इलेक्ट्रिक पंप को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वैसे हमारे हार्ट को चलने के लिए पृथ्वी की नेचुरल मैग्नेटिक पावर चाहिए, जो आज हमें कम मात्रा में मिलती है. क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि हमारे 3 फीट में लोहा है. हमारा हार्ट 1 मिनट में तकरीबन 70 से 80 बार धड़कता है, और जब जब धड़कता है तो 75 to 80 ml ब्लड पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है. लेकिन वो तभी कर पाएगा जब आपको सराउंडिंग की मैग्नेटिक पावर मिलेगी. लेकिन आज वो मैग्नेटिक पावर कम मिलने के कारण हमारे हार्ट को जब 70 ml 80 ml ब्लड सर्कुलेट करना है, उसके जगह 60 ml 50 ml 40 ml सर्कुलेट करता है, जिससे ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को कम प्रोपोर्शन में ब्लड मिलता है. और कम प्रोपोर्शन में ब्लड मिलने के कारण ऑर्गन पार्ट कमजोर पड़ जाते. जैसी मेरी भूख 4 रोटी की, लेकिन मुझे अगर 2 रोटी मिली तो मैं जैसे कमजोर हो जाऊंगा, वैसे ही हमारे ऑर्गन पार्ट का भी है. हार्ट ने अगर कम सर्कुलेशन दिया तो क्या होता है, ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को कम मात्रा में ब्लड मिलेगा. तो ये मैग्नेटिज्म, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन का क्या एक दूसरे के साथ संबंध है, उसको मैं आपको समझाता हूं. हमारा हार्ट पंपिंग करता है, और पंपिंग करके ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को, ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करने का काम करता है. और जब उसमें से ऑक्सीजन फिनिश हो जाता है तो उसमें बचता है हार्मफुल पॉइजन कार्बन डाइऑक्साइड. और हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर है, 2 में वो प्योर ब्लड को मैनेज करता है, 2 में वो इम्प्योर ब्लड को मैनेज करता है. तो पहला तो उन्हें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट ने सर्कुलेट किया, अब उसमें से वापिस डीऑक्सीजनेटेड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हार्ट वापिस से हार्ट में पूल करता है, हार्ट के पास खींच के लेता है. और जैसे वो खींचता है उस ब्लड को हार्ट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लंग्स में पुश कर देता है. और जैसे ही वो इम्प्योर ब्लड लंग्स में आता है, उस इम्प्योर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है, और उस हीमोग्लोबिन प्रोटीन के अंदर एक आयरन नाम का कंपोनेंट होता है. और आयरन कंपोनेंट में एक यूनिक स्पेशल एबिलिटी एंड कैपेसिटी है, वो लंग्स में मौजूद ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करके, डिस्चार्ज करके ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है, और हार्ट के दूसरे चैम्बर में आके गिर जाता है, और हार्ट उसको पंपिंग करके ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को, ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने का काम करता है. हार्ट जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लंग्स में भेज देता है, तो उसके अंदर का आयरन ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है. अगर मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस अगर मिलेगा, मैग्नेट की शक्ति अगर उस आयरन को मिलेगी, तो जहां पर वो अंदाजन 30 ml ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करने वाला था या 30 ml ऑक्सीजन को बाइंड करने वाला था, उसके जगह वो 50% भी कर सकता है, 60% भी कर सकता है, 70% भी कर सकता है, 80%. यानी ऑक्सीजन मैक्सिमम मात्रा में वो आयरन खींचने की कोशिश करेगा अगर आप पे मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस है. तो आज ईच एंड एवरी पर्सन को मैग्नेटिक पावर कम मात्रा में मिल रही है, क्योंकि आज हमारे 3 फीट में लोहा है. ये छत, ये फ्लोरिंग, आजू बाजू बीम कॉलम, सारे के सारे लोहे के, करोड़ों टन, अरबों खरबों टन का लोहा हमारे आजू बाजू में, बिल्डिंग के बाजू में बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाजू में बिल्डिंग, कार, बाइक, बस, ट्रक, तमाम करोड़ों टन का लोहा एनवायरमेंट का, पृथ्वी की नेचुरल मैग्नेटिक को अपनी ओर खींचता है. क्योंकि आयरन का टेंडेंसी मैग्नेट को खींचना, मैग्नेट की टेंडेंसी आयरन को अट्रैक्ट होना, तो उनके दोनों के खींचातानी में
हमें जो कुदरत ने मैग्नेटिक पावर दी है, हमारे शरीर को, हमारे हार्ट को पंपिंग करने के लिए जो मैग्नेटिक पावर दी है, उसको लोहा खींच के लेके जाता है। हमारे शरीर को कम मात्रा में मैग्नेटिक पावर मिलती है, जिसके कारण हमारा हार्ट का पंपिंग कमजोर पड़ जाता है, स्लो पड़ जाता है, और जिसके कारण हमारा फिर बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है। जहां पर हार्ट को 70 से 80 ml ब्लड सर्कुलेट करना चाहिए, वहां पर हार्ट 40 ml, 50 ml, 30 ml, हर एक बॉडी में अलग अलग ब्लड सप्लाई करना शुरू कर देता है। तो ऑर्गन पार्ट को कम मात्रा में ब्लड मिलता है। ऑर्गन पार्ट मींस ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स को कम मात्रा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलने के कारण ब्लड सेल्स कमजोर पड़ जाते हैं। ब्लड सेल्स कमजोर पड़ने से ऑर्गन पार्ट कमजोर पड़ते हैं, और ऑर्गन पार्ट कमजोर पड़ने से उसमें डिसफंक्शन, डिसऑर्डर, अलग अलग टाइप के डिसीज जनरेट होते हैं। और हमारी जो 125 से 150 साल चलने वाली जो बॉडी है, उसको हम 30, 40, 45, 50, 55, 65 में पूरी तरह से खत्म और बर्बाद कर देते हैं।